तो हम लोग उद्धव गीता ना। ना स्वामी जी, discourses. Today discourses of Swami Vivekanand, conversations and discourse. Okay, Yeah. okay. तो आज उसके ऊपर है। और कौन के केवल जी कोई समरी करेंगे उसकी, और उसके बाद में उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो कौन है भाई केवल जी? कौन है केवल? कर्नल कक्कड़। अनम्यूट करना है उनको। अच्छा, कक्कड़। अच्छा अच्छा, कक्कड़ हैं कृष्ण, केवल कृष्ण कक्कड़। मैंने कहा हम लोग मिल ही नहीं रहा था, क्या मालूम है। भाबरे जी उनको खुलाइए, म्यूट करवाइए, अनम्यूट करें। He is there, महाराज। उनको अनम्यूट, केवल जी आप अनम्यूट कीजिए। संजय एक फोन करके देखो तो। मैं फोन आ गए। करता हूँ। केवल जी दिख रहे हैं, केवल जी दिख रहे हैं, आप केवल जी म्यूट कर लीजिए। नमस्कार यस नमस्कार। यस सर। हम तो पहचान ही नहीं आए, के क्या था केवल जी? महाराज वो डिफरेंट नेम्स। अच्छा, ओके ओके। डिफरेंट। तो अब स्वामी विवेकानंद के कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स, उसकी जरा समरी बोलिए तो क्या स्वामी जी बोलना चाहते हैं? जी आई महाराज। थिंक इसमें 2-3 कन्वर्सेशन जुड़े हुए हैं ना, इसे? जी 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 महाराज। हाँ जी महाराज। तो ठीक है, बताइए जी। अगेन देयर इज, एम आई ऑडिबल महाराज? मेरे को कुछ दिख नहीं यस रहा। यस यस, वेरी मच ऑडिबल ऑल ऑफ यू। My pranams to the Universal Guru Sri Sri Thakur Ji, Ma and Swami Ji. My pranams to Diksha Guru and most revered Swami Brahmeshanand Ji Maharaj, our Shiksha Guru. My respectful namaskar to all group members. To summarize any spiritual topic is in itself a challenge. To summarize conversations of Swami Ji, which are interspersed with diverse spiritual aspects, is even more challenging. But when we summarize conversations which are in Q&A format and reduce them to plain summary minus the format, one risks the danger of completely going astray. Our summary today, therefore, is an attempt to cross-refer common aspects interspersed in various questions, club them suitably, rearrange material with meaningful subheadings, and even add a few remarks here and there, filling in the gaps, so that the quintessence of Swamiji's message in these 22 printed pages is not lost out to the listener. I humbly hope that such minor deviations would therefore be acceptable to all. Summary of pages 189 to 211, complete volume 7, complete work. Knowledge of Brahman. Knowledge of Brahman is the one goal of all beings, where various ideas are only various paths leading to it. The highest principle, the Lord of all, cannot be a person. The real nature of Jiva is Brahman. The Advaitin says that the universe consists of name and form, and when through meditation and through other paths like discrimination, this name and form are dissolved, then only Brahman remains. That one eternal pure essence of intelligence, Brahman, remains. The process of discrimination. Always discriminate your body, your house, people around you, and the world. All are absolutely unreal, like a dream. The self-contained Purusha within is your real nature. The mind is the subtle covering over this Purusha, and then there is body, the gross covering. The Purusha therefore remains hidden inside. When the mind is directed inwards, these delusive veils disappear, and the real nature of Atma may be known then. Yoga and the necessity of meditation. 1 minute. The process of controlling the vrittis of the chitta is yoga. Consider the mind as a calm lake. When the 5 senses of our sensory system come in contact with the external world, there arise a succession of thoughts in the mind, just like the waves rising in a calm lake.
hit by an object. From these mental waves arise desire. These desires trigger the jiva into karma or physical action. Now, each karma will produce pleasant or unpleasant outputs. Since our karmas or actions are endless, so also their outputs or the fruits of our action. The aim of yoga is to clear the chitta of all its vrittis and bring it to its undisturbed, peaceful, nascent state and attain freedom. For this, giving up desires for enjoyments is necessary. Therefore, we must accept that path which is beneficial to us, the Shreyas Marg, and reject the pleasant path, the Preyas Marg. Meditation and Triputi Bhed. Meditate that you are the omnipresent Atma. I am neither the body, nor the mind, nor the buddhi. I am neither the gross body, nor the subtle body. Kill the mind by repeatedly plunging into this thought. Then these three things eventually merge into one. Yatru, the knower, Ge, the object meditated upon, Gyan, the knowledge. Shastras call it Triputi Bhed or transcendence of the triad. There is no relative or conditioned knowledge in this state. Here, duality of relative existence becomes one with Brahman and is called Stimita Salil Rashi Prakhyam Akhya Vihinam, an ocean perfectly at rest and without a name. Concept of Jiva. Concept of Jiva, Ishvara and Maya. The Jiva is an individual and the sum total of Jivas is Ishvara. Man can only think of an ideal as a human being because he has to grasp everything through the limiting adjunct of the mind. In Jiva, avidya is predominant. Although the real nature of Jiva is Brahman, still, due to the qualifying adjunct of mind, he suffers from all sorts of dualities, for example, the pleasure and the pain. Till such time a Jiva realizes his identity with Brahman, he cannot escape the rounds of births and deaths owing to ignorance or lack of knowledge. Ishvara. Ishvara is the sum total of Jivas. It controls Maya and independently projects this world out of himself. So the individual aspect is Jiva and the collective aspect is Ishvara, the part of Brahman where creation, maintenance and dissolution is superimposed on universe is called Ishvara. But Brahman transcends both the individual and the collective aspects. It is the unchangeable part of the universe. When individual Jiva is buffeted by sorrows, death, disease, and starts feeling helpless, then it attempts seeking refuge in someone somewhere where he may feel safe. At this stage, discrimination and dispassion arise, and he pursues meditation and spiritual practices. Whichever path of spirituality he may choose, he and everyone else is unconsciously awakening Brahman within himself. When the separate reality of Jivas and the universe no longer exist in mind, then the essence of intelligence, Brahman, is realized. Concept of Avatara. Avatars or incarnations are knowers of Brahman from their very birth. An avatara is the highest ideal of Ishvara that can be grasped by a human mind. Knowledge of Atman can be easily attained when a jiva comes in contact with an avatara and becomes the recipient of his divine grace. That is why avatars are considered as moving tirthas. Am I audible? Because I can't see anything on the screen. Huh? Yes, you are audible, sir. Okay. Yes, you are audible. No, an avatara is the highest ideal of Ishvara that can be grasped by a human mind. Knowledge of Atma can be easily attained when a jiva comes in contact with an avatara and becomes the recipient of his divine grace. That is why avatars are considered as moving tirthas. Renunciation, Tivra Vairagya, and Sannyas. To know Brahman is not a child's play.
In fact, mukti is attained not by heroes. Mukti is attained only by heroes, says Gita. By abhyas and vairagya, this mind is to be brought under control. Lord Krishna tells Arjuna. Sri Ramakrishna used to also deprecate lukewarmness in spiritual efforts. The parable of two farmers digging the water channel in their farms is recalled as classic example of Manda Vairagya and Tivra Vairagya. The water of spirituality will not flow into the field of body-mind complex if Manda Vairagya or lukewarmness in spiritual effort is preferred. In fact, Swamiji goes to the extent of recommending not just internal sannyas, but also external or formal sannyas, quoting the authority of Mundaka Upanishad. And if that thirst is lacking, that resolve for renunciation is lacking, it only means that the real thirst for spirituality has not come. The desire for Brahmagyan has not yet grown strong enough. All paths have their own challenges. Be it Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, or simply Yoga, all paths present obstacles and challenges to be overcome. Karma Yoga challenges. Let us take Karma Yoga first. It must be clearly understood that karma or actions by themselves have no touch or consequence in relation to Brahmagyan. However, good works or good karmas do purify the mind. They may even nullify adverse effects of evil works done previously. Unselfish works, though, can become means to realize Brahman. Performance of karmas are also important after attaining Brahmagyan because one cannot remain absorbed in Brahman all the time. Jiva or Avatara, whosoever reaches Brahman, must come down and engage in some work or the other to keep the body alive. Attachment to the work performed is a great obstacle. It can even drag great saints into the web of Maya. Bhakti Yoga. Challenges. This is the path of devotion towards God. Although it is an easy path and perhaps more suitable to the householders, however, its chief defect is that it is an extremely slow process for most of us. Therefore, chances of success reaching Brahmagyan are therefore that much lesser. Challenges associated with yoga. The practice of yoga ordains as part of the process development of faculties of mind which are capable of certain psychic parts or occult parts, as given out in chapter 3, Patanjali Yoga. Swamiji warns us that such deviations may mislead us from our goal, may take us away from the attainment of self-realization. Sri Ramakrishna used to call them as heaps of rubbish, and so, like Thakur, like Buddha, like Christ, like Swamiji has conveyed his clear warnings. Challenges associated with Jnana Yoga. Although Jnana Yoga assures us of quick fruition and also provides us a sound rationale for all other paths or creeds, yet it is not bereft of challenges. Firstly, the sadhak may be stuck with unnecessary, vain arguments and thus get deflected from the path. Secondly, intensity of spiritual effort is required. Manda Vairagya won't give any worthwhile results. Thirdly, not all sadhaks are spiritually mature to take up renunciation and sannyas. Conversations on art. There are 6 points here. First, art as an expression of some idea. Every work of art must express some idea. If the central idea itself is missing, it doesn't really qualify to practice to be called as a piece of art. The ideas must be original and exquisite. The more exquisite a piece of art, the more praiseworthy it becomes. Originality of effort will definitely bring appreciation. It may take time, but eventually that piece of art will gain appreciation. Art as a means of realizing Brahman. If a wholehearted effort is put in, if the artist can be completely absorbed in his work, he may even realize supreme truth, Brahman, because such a dedication of efforts receives divine help from God. Fourth point, art characterizes a nation's intrinsic culture and its ideals. Each nation has its own characteristics, and these get demonstrated through its pieces of artwork. For example,
music in the West is jerky, the sounds of its instruments prick the ear, and vocal music appears to be crossing swords. This is because in the West, people are very materialistic. On the other hand, in Bharat, dance has a rolling movement, and the pitch in the vocal songs are quite well rounded. This qualitative difference in art exists because the ideal of our country is the transcendental reality, the Atman, which transcends way above the selfish, materialistic worldview of the West. Fifth point, the seal of Ramakrishna Math and Mission as an expression of art. The motif of logo of Ramakrishna Mission has a lake, a sun, a lotus, a swan, and a serpent. The whole idea that emerges out of it is that the union of karma, that by the union of karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, and yoga, the vision of Paramatma is attained. The wavy waters here represent karma, the lotus represents bhakti, rising sun, jnana, and the encircling serpent represents awakening. The way forward, अभी आए नहीं हो, देखो अगर नीचे दही वाला आया तो ले ले। क्या हुआ? The way forward in Indian art and an example. Think of figure of Mother Kali. It represents the union of two opposites, the blissful and the terrible. Therefore, future generations of Kali, future representation of Kali must adequately express both these aspects, something that artists in the past could not do it. Artists like Ranada Babu attempted but could not succeed in the past. But, however, the same may be attempted. However, the same may be expressed there. However, the future generations of artists may try to express the same. Mother Kali's Shakti behind Swamiji's extraordinary endeavors. Swami Vivekananda makes an extraordinary disclosure on one of the most well-known and open secrets of Shakti worship that continues to inspire thousands of monks and devotees associated with Ramakrishna Mission till date. 2 or 3 days prior to 16th August 1886, the day Sri Ramakrishna left his physical being, he called Swami Vivekananda aside, asked him to sit before him, and went into Samadhi. Swamiji felt that a subtle force was entering into his body like an electric shock. He sat motionless. Sri Ramakrishna thus transferred literally all the fruits of Kali sadhana to Swamiji. He then blessed him that with this power, Swamiji would be able to do many works for the welfare of the entire world. Swamiji then admits that for the last 15 years, from 1886 to 1901, it was this very power that was constantly directing him ceaselessly work for the welfare of all. And that this power was not letting him remain idle even for a moment. 123 years have since passed after Swamiji narrated this extraordinary experience. And we all know how the same power is now manifesting itself in millions of devotees and citizens throughout the world, how India is gradually regaining its lost pride, and how the sleeping soul of the great nation is awakening. This Sunday online class itself, under the blessed guidance of most revered Swami Brahmeshananji Maharaj, is one of the living examples of how Mother Kali's power is working within us for our individual and collective benefit. Thank you. Jai Hind. Jai Thakur. Thank you. Done very well. Done very well. Now, I would request you to keep that summary you have done, you keep it preserved, don't destroy it. It's very beautifully done. You must send me a copy of it also. Okay? Ji Maharaj. Okay. Very nicely done. Very nicely done. Okay. So, shall we take up now questions? Yes, Maharaj. So, I generally do questions. Whosoever asks first, tell him to ask first. Okay? Ji. So, first of all, K.P. Kundu.
Yes, Maharaj. Hmm. Maharaj, the first question is page 190. And it says the qualified monists hold that Brahman has transformed into Jiva and Ishvara, while Advaitavadi believes that all these are superimpositions on Brahman, which has no modification. But in both the school of thought, Brahman is higher than the Jiva and universe. What is the essential difference between the two? Why Swamiji is telling that do not think that Brahman is a distinct and separate substance? Please explain these concepts and how are they reconciled? अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है कि unless you understand what is Advait Vedanta, it will be difficult. अद्वैत में क्या कहा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. So Brahman alone is real. Whatever else you are seeing, our body, yourself, myself, this Zoom meeting, the room I am sitting, the table, the world, everything is unreal. It is illusory. Just as they gave, let a snake is visible in a rope. We are seeing the rope, the snake, and running away from it. But actually, there is only the rope and nothing else. Now, this is the fundamental of Advaita Vedanta. According to Advaita Vedanta, there is only one Brahman reality and rest is not reality. Okay. Okay? That is the Yes. important thing. Now, Vishishtadvaita, what else said? Vishishtadvaita said, no. Rest of the things are also Brahman. Yes. They are also real. They are also Brahman. I am Brahman. You are Brahman. The table is Brahman. The watch is Brahman. The water pot is Brahman. Everything is Brahman. So these two differentiation and then their conflict becomes there. So whatever important thing is that Brahman is the most important thing. It must not be forgotten. Now Advaita Vedanta says this Jagat is unreal. You just remove it or let there be only Brahman. Vishishtadvaita said no, that this Brahman or the Jagat also is Brahman. Basically Brahman, Brahman, Brahman. Now you ask your question again. No, Maharaj. So, if that means in Advaita Vedanta, this Jiva in Ishvara is just not there. No, they are one. Jivo Brahmaiva na paraha. ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है. जीव ब्रह्म न अपर, दोनों भिन्न नहीं है. दिस इज द फंडामेंटल बेसिक. जीवो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाम ब्रह्म. You heard it, isn't it? हाँ. So there is Jiva and Brahma are not different. So only Brahman is there. Only Brahman is there. But वो जो विशिष्टाद्वैत में भी तो ब्रह्मन में ही जा रहा है, तो डिफरेंस सब क्या जगह होगा? ब्रह्मन है. But the separate name, Naam Roop also is there with that Naam Roop, because otherwise differentiation तो है ना. Vishishtadvaita is Advaita with differentiation. Differentiation plus Advaita. मतलब नाम और रूप जो है वो अद्वैत वेदांत में वो स्वीकार नहीं है. नहीं करते. Whereas विशिष्टाद्वैतवाद में विशिष्टाद्वैत में जैसे वो स्वीकृत है. अब पानी में, नदी में, गंगा में आप बहुत सारे पॉट में पानी भर के रख दो, पानी है. बाहर भी पानी है, पॉट में भी पानी है. पॉट भी है तो पॉट का डिफरेंशिएशन भी है और नहीं भी है. समझे ना? तो ये जो ठाकुर जो बोल रहे हैं कि वो जो बीज भी लेना पड़ेगा और फल भी लेना पड़ेगा तब जाके पूरा होगा, उसका क्या मतलब? वही तो मैंने कहा कि सब कुछ हटा दोगे, केवल सब कुछ हटा दो, केवल बुधा लोगे यानी केवल ब्रह्म लोगे, वो नहीं. यानी ब्रह्म तो सब जगह है, मान लिया. आकाश तो सब जगह है,
लेकिन कमरे में भी आकाश है, मेरे सामने जो गिलास है उसमें आकाश है, जो वाटर पॉट है उसमें आकाश है। आकाश तो सब जगह है, लेकिन वाटर पॉट भी है और गिलास भी है। तो सो दिस इज बिकम्स विशिष्ट अद्वैत। ठीक। महाराज जी, महाराज जी, वन क्वेश्चन। हाँ महाराज जी, विशिष्ट अद्वैत में ये बताया है कि हर चीज में ब्रह्मन है। हाँ हाँ, दैट इज परफेक्ट राइट, बट द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन इज नॉट पॉसिबल इन एवरीथिंग। हाँ? रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन करना है तो हमको अद्वैत में ही जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्यों? तो फिर क्या यदि ये टेबल में ब्रह्मन है हाँ, तो टेबल में तुमको टेबल भी दिखेगी, ब्रह्मन भी दिखेगा। टेबल के अंदर, टेबल ब्रह्मन दिखेगी, टेबल दिखेगी, ब्रह्म दिखेगा। अच्छा, तो ये देखने का प्रोसीजर क्या रहेगा महाराज? कोई साधना है ना, उनकी सारी साधना करो। अच्छा, ये साधना हम किस तरह से करेंगे? क्या टेबल को ब्रह्मन, टेबल को ब्रह्मन, टेबल को अब ब्रह्मन? वो लोग बताएंगे, जैसे हम ब्रह्माष्टमी करते रहते हैं, वो बताएंगे टेबल ब्रह्म है, टेबल ब्रह्म है। अच्छा, तो वो विशेष वालों से बात करनी। हमसे बात करना, टेबल ब्रह्म है, जब बताएंगे वो आपको। ओके, राइट महाराज जी। महाराज जी, मेरा तीसरा सवाल है इसी से रिलेटेड है, मैं अभी पूछ लेता हूँ महाराज जी। हाँ, पूछ लो। क्योंकि ये ईश्वर के बारे में, हमने ब्रह्मन के बारे में बात किया, तो मेरा सवाल उसमें ये था, आपको याद होगा, हु इज ईश्वर? इज ईश्वर एक्चुअली अनरियल? इज ईश्वर शगुना ब्रह्मन? इज ईश्वर ऑल्सो ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ ब्रह्मन? ये मेरा पूरा सवाल था हमारा। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, हाँ ईश्वर इज सुपर इम्पोजिशन, जी, वो भी मिथ्या है। हाँ वही अनरियल है। हाँ, क्योंकि अगर जगत मिथ्या है तो जगत को बनाने वाला भी मिथ्या है। जगत मानना पड़ेगा तो जगत को बनाने वाला स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर मानना पड़ेगा। जी। तो लेकिन ये अगर जगत केवल अद्वैत मानोगे तो ये जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या हो जाएगी। तो लेकिन अद्वैत वेदांत, मजेदार बात यह है जी, कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत ये सब बोलते हैं जगत मिथ्या है, सब उड़ा देंगे, और लेकिन उन्होंने ईश्वर की इतनी सुंदर स्तुतियां की से वैसे द्वैतवादी भी नहीं कर सकते। जी जी, एंड मठ भी स्थापित किया। हाँ, तो वो जानते हैं मिथ्या, ये सब मठ भी मिथ्या है, मेरा स्तोत्र भी मिथ्या है, ईश्वर भी मिथ्या है जी फिलोसॉफिकली। और वे कहते हैं कि अवस्था ऐसी आती है जब आप निर्विकल्प समाधि में ये जानते हो कि सब कुछ विलीन हो जाता है, केवल ब्रह्म रहता जी। So for the lower level of people, these are necessary. है। यस, So is Ishvara also can be called Saguna Brahman? हो यस यस, सगुण ईश्वर ही सगुण ब्रह्म। Saguna Brahman, ठीक है। निर्गुण ब्रह्मण इज नथिंग बट ब्रह्मन। Nothing but Brahman, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा, थैंक यू। सेकंड कुंडू, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन महाराज। महाराज एक प्रश्न है महाराज। हाँ, यहाँ क्या हुआ? नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। पे ठाकुर कहते हैं कि मुझे जान, कहते हैं कि मुझे जानो और तुम कौन हो जानो और मुझसे तुम्हारा क्या संबंध है वो जानो, यही हो जाएगा बस। तो ये हाँ। क्या विशिष्ट अद्वैत हुआ? हाँ, ये विशिष्ट अद्वैत हुआ। और सुनो, एक लेवल पे विशिष्ट अद्वैत हुआ। हेलो, हाँ हाँ, थोड़ा आगे आगे हाँ, आगे जाओगे तो मैं और ब्रह्म, हाँ। मैं और ठाकुर एक हो जाएंगे। फिर ठाकुर और मैं क्या रहेगा कह नहीं सकते, ये भी ठाकुर व्याप। ओके, वो उच्च मतलब है, उसको उच्चतर अवस्था को स्वीकार करके फिर नीचे के लेवल पे रहो। ठाकुर भी तो है, निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके नीचे के लेवल पे रहे थे। पहले तो है, इतनी बहुत ऊंची बात नहीं। सबसे पहले अपने को ठाकुर का दास बनाओ, भक्त बनाओ, ये भाव पहले पक्का करो। अभी तो संसारी भाव है, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये सब भाव से ऊपर उठकर भगवान के साथ एक संबंध बनाकर मैं भगवान की दासी हूँ, भक्त हूँ, ये भाव पहले अच्छा रखो। ये फिलोसॉफिकल अद्वैत की बात है ना, उसको छोड़ दो।
ठीक है। तो महाराज ये रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो दास भाव या संतान भाव जो हम कोशिश करते हैं बनाने के लिए, उसका मतलब तो यही है ना कि ठाकुर में या माँ में जो सारे गुणावली है उसको मतलब जीवन में उतारना, उसको खुद के अंदर आना, लेके आना और जीवन में उतारना। ना, ये इसके पहले उससे ऊपर एक ये है कि माँ और ठाकुर जो है वे ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म जी है, जी और हम उनकी संतान है या दास हैं। हाँ दिस इज द फंडामेंटल। हाँ और अगर जब हमने मान लिया हाँ कि मैं हाँ ठाकुर की माँ की संतान हूँ, जी पुत्री हूँ, जी तो मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरे को सद्गुण आने चाहिए मुझ में। हाँ हाँ ये सेकंड इफेक्ट होता है। अच्छा ठीक ठीक महाराज, एकदम क्लियर। हाँ अच्छा, सेकंड कुंडू, second question, Maharaj. Swamiji, in page 192, Swamiji emphatically says that Brahman cannot be realized without taking sannyas. Now that makes the disciple reject. Is there no hope for householders to attain liberation? Thakur said that the householders will renounce in mind. हाँ, In page 209, Swamiji also says that the test of progress is the amount of renunciation that one has attained. Please explain these ideas in the context of us who are trying to follow the spiritual path. now look, renunciation is most important. यानी त्याग तो करना पड़ेगा आपको, फंडामेंटल है। दिस इज फंडामेंटल, उसको अच्छी तरह याद करना। यानी हम क्या कहते हैं, हम गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे? जैनिज्म नहीं मानता। तेरा जैनिज्म जो है वो बिल्कुल संन्यास प्रवण है, 100% सन्यासी। चाहे कितने भी गृहस्थ हो, कभी ना कभी आपको त्यागना पड़ेगा ही, बिना उसके होगा नहीं। बहिर्त्याग केवल यहाँ तो रामकृष्ण मिशन में, अपने हिंदुइज्म में तो आंतर त्याग हो गया ना जी। हाँ, वो रिनाउंसिएशन स्पिरिट हो गया, बाहर का त्याग नहीं, अंतर का त्याग हुआ, ये बात करने को लग गए। लेकिन जैनिज्म नहीं मानता इसको। और प्रश्न ये है कि अगर ठीक ठीक आपने पक्का वैराग्य हो गया है, तो फिर बाहर का त्याग क्यों नहीं करते? भाई यार, यू बैठे क्यों हो, क्यों नहीं करते? और हमारे हिंदू धर्म में तो 4 आश्रम किए गए हैं। हाँ, वही तो ब्रह्मचर्य पूछ रहा आश्रम हूँ हो गया, Yes. संन्यास आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। अब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में क्यों नहीं जाते? जब आपका 50 वर्ष की उम्र हो गई, आपका तो 75 तक वानप्रस्थ में रहना चाहिए। एंड वी आर हैविंग एक्सक्यूजेस, अंतर त्याग, अंतर त्याग, अंतर त्याग। और ठाकुर ने कहा है अंतर त्याग, नो नथिंग टू इट। ठाकुर ने तो बाहर का त्याग 100% किया, उसके बाद में लोगों के लिए रहे हैं वे। लेकिन he actually officially took sannyas. So please don't make excuses. These are the mental excuses. हमारी वासना, अटैचमेंट टू लाइफ, और करने की क्या जरूरत है कि अंतर होगा, क्या होगा नहीं। इसलिए जैनिज्म में तो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक दिन आप चलो से बाहर चले जाओ। ये साधु लोग जहाँ रहते हैं उनके दिन तक साधु बन के रहो, मुंह पर कपड़ा लगा लो और भिक्षा भी मांगो, लेकिन वो लोग जैसा रहते हैं वैसा रहो 7 दिन, या फिर 15 दिन तक। गाजीपुर में कुटिया है, एकांत में जाके रहो 15 दिन तक, 7 दिन तक। उसमें ये विश्वास करो कि मैं सन्यासी हूँ, उस प्रकार का विचार करो। केवल ये है कि मैंने गेरुआ नहीं पहना है और मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। और फॉर दैट मैटर तो एक को थोड़ा सा गेरुआ जैसा भी कपड़ा पहन के एक स्थान पे रहो। तो ये इस प्रकार के नियम है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं। बीच बीच में सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए।
तब जी बहुत समझ में आएगा कि सन्यास क्या होता है। जी 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 अभी वी आर हैविंग एक्सक्यूजेस। महाराज जी, हाँ Chandragupta Maurya, he gave up his kingdom and became a Jain ascetic they say, और उसने अपने बेटे बिंदुसार को राजा बना दिया. हाँ So he himself said कि now I am a lay Jain monk or something like that. So was did he become a monk? Is that a renunciation? Is that sannyasa? अब याद नहीं मेरे को, लेकिन वो जैन तो हो गया था ऑफिशियली, बिकेम ए जैन। और जी लेकिन उसमें वो जैन एस्थेटिक सन्यास साधु हुआ था कि नहीं मालूम। ये नहीं मालूम. नहीं अच्छा. But महाराज would his life be associated the way he, I mean, to be a sannyasa if he has given up kingdom and everything? तो and क्योंकि उसमें भी तो 2 लेवल्स होते हैं ना आपके जैन में, एक ले ये ना वो होता है ना, वो होता है। जी जी हाँ वो लेकिन बताइए. सन्यासी 2 प्रकार के नहीं होते। हाँ हाँ सन्यासी केवल एक ही प्रकार का होता है, सन्यासी की होता है. तो पूरा त्याग करना पड़ता है। ऐसा ले सन्यासी और वो बाहर कर जाने ऐसा सन्यासी। अच्छा, ले एसेटिक नहीं तो बोलते. जैन रह सकते हो, नियम पालन कर सकते हो, हाँ घर में रहकर पालन रख सकते हो, लेकिन आपने सन्यास नहीं लिया भी कर सकते हो। जी ठीक है महाराज. नहीं महाराज, आपने जो एक्सप्लेन किया इसमें फिर भी एक डाउट है. सन्यास जो अब हम समझते हैं, सन्यास ये समझते हैं जैसे रामकृष्ण मिशन में देख रहे हैं कि someone who has not married, who has not entered the family life, and he has renounced at the beginning of his life. संजय जी Suppose बहुत आ रहा है, सरला जी, इसका आवाज आ रहा है। इसका ही आ रहा है आवाज जबरदस्त। हाँ महाराज, तो मैं ये पूछ रहा था जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि 50 से 75 तक का ब्रह्मचर्य में चले जाओ, बेशक 15 दिन के लिए चले जाओ. So will it be considered, will it be enough? That is what is the idea. कि ऐसे तो नहीं है कि हमने ट्रेन मिस कर गया. महाराज आप म्यूट हो गए. वो मैं सरला जी का कर रहा था पर उनका हो गया, सरला जी का म्यूट हो नहीं रहा है। महाराज जी आपका म्यूट हो गया. अनम्यूट कर लीजिए महाराज। महाराज आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। महाराज का फेस नहीं दिख रहा। मैं अब क्लियर हो क्या? हाँ यस महाराज, अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका अब तक का हाँ म्यूटेड जी। थे महाराज. महाराज जी मेरा एक सिलसिले में एक क्वेश्चन है, पूछूं? नहीं, इसके पहले मेरा क्वेश्चन के सवाल सुन लेता हूँ महाराज. हाँ हाँ महाराज, सवाल ये था कि जैसे हम लोग जानते हैं सन्यास और गृहस्थ जो डिसीजन 15 साल या 20 साल में हो गया, जो देख रहे हैं, नाउ दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ एट दिस स्टेज, ऐसे तो नहीं है कि वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस. मतलब अभी अगर करेंगे, लाइक अभी भी तो वी आर कैलकुलेटिव इन आवर माइंड and we have got excuses in our mind. We want to we do not want to really renounce. और तभी मन में आता है कि ये जिंदगी तो ऐसे ही चला गया, अगली जिंदगी में देखेंगे. इसके बारे में आप क्या करेंगे? एक्चुअली जैनिज्म में तो क्या है, वो नहीं मानते इस चीज को. अच्छा, इस जन्म में तो संस्कार तो पड़ेगा, यानी मरने के समय भी सपोज आदमी मर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई वो साधु को बुलाते हैं कि आप उसको सन्यास की दीक्षा दे दो. ठीक. तो ऑफिस सन्यास की दीक्षा ले लिया, क्योंकि मरने के बाद में क्या है कि एक जन्म लेगा, नया जन्म लेगा, तो सन्यास के संस्कार के साथ जन्म लेगा. अच्छा. अब होता, सुनो होता क्या है, कभी कभी वो बच जाता है, मरता नहीं है. पर अब तो सन्यासी का संसार, सन्यास को मैंने दीक्षा ले लिया है, फिर मैं वो नहीं जाता कि नहीं, मैं साधु गृहस्थ था और मैंने
बस मरने के लिए सन्यास दीक्षा ली थी। अब मैं बच गया हूँ तो मैं सन्यास लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, घर संन्यास में नहीं हूँ। हाँ, वो फोर्थ टाइप ऑफ संन्यास जो पहले हमने हाँ, वो बात जो है कि फोटा जैसा आतुर सन्यास या मरकट सन्यासी आतुर जो कुछ वो संन्यास, है, आतुर संन्यास। तो उसका भी संस्कार होता है। और फिर अगर बच गए तो फिर बच जाते हैं, हाँ, फिर फिर वो कंटिन्यू साधु नहीं बनते, वो गृहस्थ नहीं बनते, बने रहते। ठीक So महाराज जी। this officially external sannyas also has got very great value. ठीक। महाराज जी, महाराज जी एक चीज पूछूं? हाँ, महाराज जी, ठाकुर जी ने एक जगह बताया कि भाई फोर्ट का अंदर में रह के लड़ाई करना सही है, सब जगह हाँ, और द्वार में जाके भिक्षा लेके, अगर मैं इफ आई डेवलप द लव ऑफ गॉड एंड विद इन फोर्ट एंड स्लोली आई एम अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, जितना चल रहा है कामिनी कांचन, काम क्रोध लोभ मोह मद माया, ये सब मैंने विचार करके ये सब करते करते आगे बढ़ते, सन्यास का कोई जरूरी है क्या? क्या सन्यास लेना जरूरी? और ये साधु ठाकुर ने जो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग बात अलग कही अलग थी। शिक्षा। और जो उनके सन्यासी शिष्य थे उनको वो अलग कमरे में ले जाके दरवाजा बंद करके चारों तरफ देखते थे कि 10 फीट 20 50 फीट में कोई गृहस्थ तो नहीं है सुनने वाला, और उनको जाके वहां पे ट्रिमेंडसली वैराग्य की बात करते थे। भाई पहले वैराग्य का भाव पक्का करिए आप, विवेक के द्वारा वैराग्य के लिए, तब आपको खुद समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अरे अरे, अगर मैंने अंदर से वैराग्य लिया तो बाहर से क्यों वैराग्य नहीं लूं, क्यों पड़ा रहूं मैं इस संसार में। जी महाराज। So that is a important part which should be nicely understood. जी महाराज यस जी। महाराज। ठीक है, जी हाँ महाराज। महाराज, ये डायरेक्शन तो है। दिस इज ए गुड। अच्छा ठीक है। महाराज पेज 193, Swamiji speaks of two coverings to the knowledge, the mind and the gross body. But are the coverings not 5, the panchakoshas? अच्छा, अभी तो एक 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 है, मैं और भी जोड़ दूं बीच में। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो ये तीन कोश, तीन कवरिंग हो गई। हाँ अब महाराज। क्या कितना मानोगे भाई, 5 मानोगे, 3 मानोगे कि 2 मानोगे? अरे ये झगड़े से कोई फायदा नहीं, ये जो अच्छा। फिलोसॉफिकल है, मोटा थ्योरिकल मोटी बात है। दो। वो बातचीत अच्छा। करते हुए स्वामी जी ने कह दिया कि 2 कवरिंग है। अच्छा। वो लोग, वो अगर हम कारण शरीर बोलते तो वो लोग नहीं समझते ये क्या कारण शरीर बना है। और लोग फिजिकल समझते हैं, माइंड समझते हैं, तो उसी को मानते हैं। और ये ठीक। पंचकोश करने से क्या फायदा, वो भी तो नहीं समझ में आती हमको बात। फिलोसॉफिकल हो गया पंचकोश। अच्छा। लेकिन जब विचार करना है, विवेक चूड़ामणि में है, तो एक एक कोश को उन्होंने अच्छी तरह लिया है। अरे बाबा, पहले स्थूल शरीर से तो अपने मन को अलग करो, ये तो सिद्ध करो, डिसाइड कर लो और पक्की तरह बैठ जाओ कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। एक बार हो गया, उसके बाद में आप कारण से मन पे आ जाओ, मैं मन नहीं हूँ। उसके बाद फिर विचार करो, मैं अविद्या नहीं हूँ, अज्ञान नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। तो ये साधना के विषय है फिलोसॉफिकली। तो जैसे मैंने कहा ना कि 3 डिवीजन हो गए, फिजिकल और मेंटल हो गए, और उसके बाद में ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर हो गया, और पंचकोश। तो ये ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इन द वेरियस कॉन्टेक्स्ट बिटवीन टू। ओके। अच्छा, जैसे आपने गाइडेड मेडिटेशन में बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए साक्षी भाव की साधना करना चाहिए। There we keep seeing our different parts of our body and try to think that they are different from my own self. तो ये तो फिजिकल बॉडी हो गया। थोड़ी देर में तो लगता है यस, बॉडी का तो नाश है, मेरा नाश नहीं है। फिर हम मन को अवलोकन करते हैं, मन का साक्षी बन जाते हैं। उधर जाके somehow it gets jumbled up मार। तो मतलब साधना यही है कि कवरिंग जो है 1 माने या 5 माने या जो भी माने, लेकिन बेसिकली बॉडी से अपने को निकलना है, मन से अपने आप को निकलना है, यही है ना? ठीक है। तो ऐसा है कि बॉडी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ ना, जाता कोई है। दिक्कत नहीं है मान।
माइंड की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि माइंड से ही विचार करना है कि मैं माइंड नहीं हूँ, हाँ इसलिए प्रॉब्लम होती है। ठीक तो ठीक जो है। एनालिसिस कर रहा है कि मैं माइंड नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो भी मिथ्या है, आत्मा नहीं। So this becomes a little difficult, but it doesn't matter. You go on doing it, it can be done. Yes. ठीक है? Yes, man. हाँ, Now, last question, Maharaj. Page 198 में. महाराज Now, एक प्रश्न है महाराज, ये जो अरे तुम्हारा ये बार बार गड़बड़ करता है। मन को माइंड निवेदिता है, तुम्हारे फोन में there is some problem with your आप phone. मैडम आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, हेलो वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ। हाँ बोलिए। मैं बोल बैंडविड्थ रही हूँ कि मन से जब हम विचार कर रहे हैं तो मन को क्या दो भागों में बांट सकते हैं? एक साक्षी मन हो गया और एक देखने वाला, मतलब हाँ, क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली ये हमको फायदा करेगा क्या नहीं? हाँ, डेफिनेटली मन को दो बार डिफाइड किया जा सकता है, इजीली कैन बी डन। हाँ, एक साक्षी मन और एक वो। हाँ ठीक है, ठीक है, वही पूछ रही हूँ। कितनी बार तो बता दिया, ये बार बार क्यों बोलते हैं? Maharaj, last question is page number 198. What is the origin of fear? How does realization of Brahman dispel fear? No, here Brahman, the origin of Brahman, fear is dvitiyadvai bhayam bhavati. Fundamental is where there are two, there is fear. What is the nature of this fear, Maharaj? This is the The basic. right- हाँ, where there are two, there is fear. मैं हूँ और दूसरी चीज है, तो if the other thing is evil or other thing is unpleasant, there is that fear. And if that is pleasant, then there is a chance of it going away. Yes. That is why dvitiyadvai bhayam bhavati. This is what Upanishad they say. Where there are two, there will be fear. And so you have to go to the level of Brahman where there is only one. Is that okay? नहीं, एक बार और बोलिए महाराज, ठीक से समझ में। Where there are two, द्वितीयात् वै भयम भवति. This is the Upanishadic statement. जहां पर भी दो हैं, वहां पर भय है। क्या है? एक अगर बुरा है, वो मेरे को कष्ट देने वाला है, शत्रु है तो भय होता है, और अगर मित्र है तो उसके चले जाने के, विछय होने के, उसका भय होता है। अभी सुख मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन कभी भी जा सकती है तो उसका भय होता है। तो ये दो भय जो है, जहां पर भी दो होगा, वहां पर कभी न कहीं पर भय बैठा रहेगा। इसलिए है कि अगर भय को दूर करना हो तो अद्वैत में प्रतिष्ठा हो जाओ कि दो चीज है ही नहीं, केवल एक ही है। तो मैं डरूंगा किससे, भय किससे करूंगा? किससे विरह होगा? विरह भी नहीं होगा, और मेरा शत्रु। अच्छा, so this fear is not only the fear of death. हम सोचे कि ये मृत्यु है। Fear of death, disease, ये सब नहीं है। अच्छा, ये जनरल fear है। ओके। सेपरेशन का fear है, मीटिंग विथ समथिंग विच इज हार्मफुल और पेनफुल, ये है। तो जस्ट डेथ इज समथिंग वेरी लिटिल, वेरी माइनर थिंग। अच्छा, हाँ, ना फिर in that light it is understood. ओके, थैंक यू मान। हाँ, चलो सुबीर मजुमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, on page 204 in the section 17, Swamiji is talking about his health, and he says it has been born on the soil of Bengal, and some disease or the other is always overtaking it. The physique of this country is not at all good. What does he mean by this, Maharaj? ये आप लोग जानिए, हमको क्यों पूछते हैं? बंगाली हैं आप लोग, जो बंगाल में उठे वो लोग बताइए, हम नहीं जानते थे। वो कहते हैं बंगाल में जो है वो ह्यूमिडिटी के कारण बीमारी ज्यादा होती है।
मैं क्या बताऊं। वो चाव अब चाव पंजाब में जाइए, पंजाबी में पंजाबी जो है ना बेसिकली स्ट्रांग है ना। हाँ, नॉर्थ में बोलते हैं दे आर टफर, उसी प्रकार शायद बोल रहे हैं क्या? हाँ, बेसिकली पंजाबी आर वेरी स्ट्रांग। पंजाबी, हरियाणा जो आपके मिलिट्री में उसमें भी यही है। और तो मजाक होती थी कि हाँ। वो वही बंगाली जो है एक भी बटालियन नहीं है इंडिया आर्मी में। ऐसे मजाक किया करते थे, बंगाली एक भी बटालियन नहीं है, वो लोग आते ही नहीं, आर्मी में आ ही नहीं सकते, वो लड़ ही नहीं सकते, ऐसे सब करते। तो भाई ये आप लोग जानिए। तो ये जेनेटिक होगा शायद फिर इसमें, probably ऐसा genetic। नहीं, ये भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी हैज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हाँ ड्राई क्लाइमेट में द बॉडी रिमेन्स बेटर। हाँ अब जैसे हम बारिश के समय भी जो है ना, हम लोग जरा डल ज्यादा होते हैं, नींद ज्यादा आती है, सब जब क्लाउडी हो जाता है तो बॉडी डल हो जाता है, स्लीपीनेस ज्यादा हो जाती है, तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है। तो दे क्लाइमेटिक इफेक्ट आर देयर, यू कैन नॉट बी डिनाइड, दैट इज द। and it is also said that the Europeans are even tougher than the Asian counterparts। हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते थे कि जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग है, जैसे कि वो उनका ज्यादा है, हम लोग का कम है। तो इस तरह की चीजें भी देखी गई है। the standards of different parameters आई में डोंट भी नो, फर्क लेकिन दिखाई। जैसे पंजाबी, सिख वगैरह है ना, हाँ जी ये तो काफी टफ है जी। ये लोग तो Swamiji, काफी टफ। Bengalis are very emotional. Now That leave aside that we are talking in terms of physical part. महाराज जी, eating habits के लिए होता है eating। अब ऐसा आई डोंट नो, स्वामी जी तो रिकमेंड किया था नॉन वेजिटेरियन डाइट के ईटिंग लिए हैबिट से होता है, ईटिंग हैबिट। महाराज जी, the Europeans were very tough, they had very tough conditions, ठंड में, बर्फ में, they met, so he was always very praising these people। ऐसा है उनसे कि expectation। there must have been a time in India where the diet must have been non-vegetarian, and people must have been warriors struggling, and then we have the history of world wars, Mahabharat war and all that. And later on, it was that because of the violence, hinsa, जी so महाराज। they were the true revolutions of Jainism and Hinduism, हाँ which was based upon vegetarianism and ahimsa. So I don't know when we have to search for history of India, because पहले भी तो King Ashok was there, and India had prospered and flourished, and Indian culture had gone out also. So we cannot really say. I mean, Europe at that time, what would have been the condition of Europe, we don't know. According to Swami Vivekananda, European culture, etc., developed much, much later than Indian culture. But वो उनका जो हार्ड वर्किंग कल्चर है, that is what he was trying to tell the Indians कि आप काम करो, be like that them, is, more enterprising। India has given India has put all its labor on spirituality. And that's why, Hinduism, Jainism, Buddhism, spiritual culture, Swami Vivekananda himself says, if religion goes away, what will remain of India? India is the most important thing is religion. Religion. But Swamiji wanted that religion is all right. Now at least some physical body has to be made strong, etc., has to be done. So in that light, it seems, in that way, Western people, they may be strong, but they are barbarians. They cannot understand ahimsa. Yes, why don't you realize that? Yes, Even they Jesus were, Christ was murdered. They were spiritually weak. Jesus Christ, who talked of highest spirituality, he was murdered. Yes, they were barbarians. So that way, Western people, they might be strong physically, but that is a secondary thing. What is important is spirituality, which in India is there. There has to be a balance. Yes. Okay. My last question, Maharaji. On page 208, again, same section, Swamiji is speaking on outward formalities and rituals. And he says,
but of course external forms are necessary in the beginning for the inner realization of religion in order to make the truth of the scriptures practical in one's life. ये उन्होंने कहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने इसमें किया, टू मेक द ट्रूथ ऑफ स्क्रिप्चर्स प्रैक्टिकल इन वंस लाइफ, इसका क्या मीनिंग हुआ है? व्हाट इज मेंट बाय दैट? देखो, पहले तो ये रियलाइज हो जी, 4 प्रकार की उपासना, 4 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते हैं मानव के। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जपस्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा, उत्तमोत्तमा। तो प्रथमा तो प्रतिमा पूजा, बाहर की रिचुअल्स वगैरह है, मंदिर पूजा एक्सेट्रा होगा। और द्वितीय है जपस्तोत्रादि, दूसरा वो तो मेंटल लेवल पे आए। उसके बाद मानसिक पूजा, ध्यान आया, और अंत में है यू बिकम वन विद गॉड। नाउ यू कैन नॉट रिमेन एट मानसिक लेवल कंटिन्यूअसली, कैन यू? नहीं नो महाराज। वन कैन, एक्सेप्ट ठाकुर और जैसे उच्चतम समाधिवान व्यक्ति हैं, उनके सिवा तो आप ऊपर रह नहीं सकते ना। जी जी। So spirituality has to come to a lower level Lower to manifest or to live itself. हाँ, That is why प्रतिमा पूजा कहिए या एक्सटर्नल वर्शिप कहिए, हमने स्कूल कॉलेज लगा दी, चालू कर दिया है, रोगी नारायण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम समाधि में तो हमेशा रह ही नहीं सके ना। राइट राइट। So that is the point. That is the हाँ, main thing. इसलिए उन्होंने कहा ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर्स प्रैक्टिकल वर्ड। You have to be practical, otherwise क्या फायदा हुआ? लेकिन एक सवाल इसके साथ और मैंने जोड़ा हुआ है महाराज। Sometimes for me rituals seem a little tiresome. I feel like plunging into japa and meditation without the preliminary rituals. ये भाव, can I do that? Yeah. Every sadhaka realizes this. जी Every sadhaka is not merely you. जी In the beginning we need paraphernalia. जी। But gradually as we advance, become used to it, then after 10 years, 15 years, 20 years, you थोड़ा सा कर लिया, मूर्ति फोटो है उसको अगरबत्ती जला दिया, साफ कर दिया, थोड़ा सा एक बताशा चढ़ा दिया, that is enough. That is enough. और बाकी आप थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, शास्त्र पाठ के लिए और ध्यान कीजिए। जी। तो वो प्रतिमा पूजा हो जाएगा, जब सूत्रादि आ जाएगा, स्वाध्याय आ जाएगा, और उसके बाद ध्यान आ जाएगा। हाँ, तो we can जैसे जो स्वाभाविक, it already not is very naturally it happens. नेचुरल इफेक्ट, हाँ, जो स्वाभाविक भाव से ये रिचुअल्स मिनिमलाइज खुद ही अपने आप छूट जाता है। that is what जी। ओके महाराज जी, इसमें स्वाध्याय किसमें आता है? एक तो प्रथमा प्रतिमा पूजा, 2 तो जप स्तोत्रादि हो गया, 3 नंबर जप स्तोत्रादि मेंटल लेवल। हाँ, तो एक्चुअली मानसिक पूजा में भी ले सकते हो आप। When you are doing स्वाध्याय मेंटल लेवल पे आ गए ना। अच्छा, मेंटल लेवल, ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज। चलो अब दिलीप भाई। हाँ जी महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, my first question, page number 190. It is written, Maharaj ji, why Vedanta hatred Vaishnava? सुनो, वो जैसा लिखा है वो अलग प्रकार का है, तुमने जो बोला है वो एक्चुअल जैसा है, वहाँ सेंटेंस ऐसा नहीं है। आपने कमेंट्री किया है, ये आपका कमेंट है, यहाँ पे वहाँ हेट्रेड की बात नहीं लिखी है, वेदांति की बात और वैष्णव की बात नहीं लिखी है। क्लियरली देखो वहाँ नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। हाँ जी। देखो ऐसा है कि अद्वैत वेदांत के अंदर सब ब्रह्म है। हाँ। तो ये मूर्ति भी है, वो ब्रह्म है, वह भी मैं और मूर्ति एक है। तो वहाँ भक्ति का भाव नहीं हो सकता जी। अच्छा, और द्वैतवादी है वो तो कहते हैं नहीं, भक्ति होना ही चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हाँ। तो द्वैतवादी जो है वो अद्वैतवादी को गाली देते हैं, समझे ना। अद्वैतवादी के साले ये मानते ही नहीं है, मूर्ति को हटा देते हैं, बदमाश है ये, झूठ है, ऐसा है। तो द्वैतवादी जो भक्त है, जो कट्टर भक्त है ना, हाँ। कट्टर भक्त है, अद्वैत को गाली देते हैं। अच्छा। और जो पक्के अद्वैतवादी हैं वो कहते हैं ये द्वैतवादी तो पड़े हुए हैं माया में, पड़े हुए हैं माया जाल में, पड़े हुए हैं, उसको गाली। और जबकि उपनिषद में दोनों प्रकार की बातें हैं, याद रखो।
हाँ उपनिषद में भगवान की भक्ति की बात भी है, मूर्ति पूजा की बात में भी है, सब कुछ है, दोनों है। जी और जो जो द्वैतवादी है ना, वो हाँ भी कहते हैं देखो ये फलाना फलाना श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान की उपासना की बात लिखी हुई है। महाराज जी एक और मिनट सर, ये संजय जी एक तो आवाज बहुत आ रहा है और महाराज जी के वो दर्शन हो जाए ज्यादा अच्छा है, समझ में कम आता है। अरे संजय महाराज महाराज जी के संजय, दर्शन, आज लोग हमारे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, फिर रिकनेक्ट करो ना। हाँ अच्छा, आप अपना टैप करिए मोबाइल पे ना, नीचे वीडियो आएगा उस पर टच कर दीजिए, जैसे अनम्यूट होता है वैसे वीडियो चालू हो जाएगा महाराज। कहाँ कहाँ रिकनेक्ट करूँ मैं? और ये मोबाइल आवाज भी बहुत आ रहा है। बीच में टच करिए, वो तो चला गया, नीचे से करने माइक से तो आएगा चला वैसे जाएगा। हाँ, वो एक वीडियो कैमरा का एक आइकन बना होगा महाराज। नहीं, यहाँ तो तीन आइकन है, एक ये है, तो ये दूसरा आ गया। एक माइक है, एक दूसरा वीडियो कैमरा होगा, उसी को टच करने से वीडियो बिल्कुल चालू हो जाएगा। माइक के बगल में होगा महाराज। हाँ, अब माइक माइक के की जस्ट कहाँ है राइट में यहाँ पे? हो अच्छा, जाएगा। एक मिनट चलो, एक मिनट दे रहे। कौन तो खूब बात कर रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। गीता विश्वाल जी, कोई तो बात कर रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। गीता विश्वाल जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ अभी तो ठीक है। अब महाराज जी के दर्शन हो जाए तो समझ में ज्यादा है। महाराज आपका हाँ जी आ इमेज आ गए गया। महाराज जी आ गए। जी आपका महाराज, यहाँ पर हाँ, हो गया। अब ठीक हो गया, चलो, हो गया। ठीक है। जी 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 हाँ महाराज जी, हाँ तो ये द्वैत और अद्वैत का झगड़ा है वैष्णव में। हाँ ऐसा है, उपनिषद में द्वैत की भी बात की गई है। जी और श्वेताश्वतर उपनिषद कहो तो ईश्वर है, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये भी कहा गया है। हाँ और फिर बृहदारण्यक उपनिषद में कहो तो कहते हैं सर्व ब्रह्म है। जी तो ये जितने मतवाद दिखने हैं ना, जितने भी वैदिक मतवाद हैं, सब उपनिषद के हैं, उसको वेदांतिक बोलते हैं, जी और इसमें झगड़ा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपको जो ठीक लगे उसको ले लो बाबा। बराबर जी जी महाराज जी से ये तो लिखा था कि हीटेड डिस्कशंस विथ हिम, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वो उसमें हीटेड डिस्कशन करते हैं, वो वेदांत वाली आके और वेदांत और विशिष्टाद्वैत वेदांत वाली जो है वो झगड़ा जी करते हैं एक दूसरे को, यस राइट और कुछ नहीं। जी महाराज जी, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 190। The Lord of all cannot be a person. There is a one line on page number 190. There cannot be a person. The Lord of all cannot be a person. हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि राम कृष्ण वो whether they were any time a person or not. वो अल्टीमेटली जैसा भगवान, देखो उपनिषद, वो भी ले लो, अपने तुलसीदास जी को ले लो, हाँ वो भी, और अपने अपने विवेक, अपने रामायण भी ले लो, वहां हाँ सब में कहते हैं भगवान जो राम जो है वो परब्रह्म परमात्मा है, बोलते हैं कि नहीं? जी 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 कृष्ण को भी भगवान परमात्मा बता देते हैं। हाँ तो जब बात करते हैं कि जब परमात्मा ही है वो, लेकिन फिर लीला कैसे करेंगे और रावण को कैसे मारेंगे? तो ये लीला के लिए भगवान जो है वो लीला करने के लिए राम का, कृष्ण का रूप लेते हैं, और जगत के राक्षसों को मार के जगत में धर्म का संस्कार, धर्म की स्थापना करते हैं। तो बिना उसके रूप लिए बिना तो धर्म स्थापना भी नहीं हो सकती ना। बराबर, तो ये इसका यहाँ पे स्वामी जी का कहना है, द लॉर्ड ऑफ ऑल कैनॉट बी अ पर्सन। हाँ, अल्टीमेटली उच्चतम जो है वो परमा व्यक्ति नहीं हो सकता, निराकार हो जाए, केवल ब्रह्म होगा, वो केवल एक ब्रह्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी हैव टू थिंक दैट राम इज द ब्रह्मन, कृष्ण इज द ब्रह्मन। हाँ 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 हाँ। ओके, राम नाम संकीर्तन नहीं सुना? हाँ सुना सुना। पहली लाइन है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, पहली लाइन, राइट, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, पहली लाइन है। ओके जी जी। और महाराज जी, ठाकुर भी ब्रह्म है, बिकॉज मुंडका उपनिषद में जो कोट किया गया है इस में, कि जो ब्रह्म को जानता है वो खुद ही ब्रह्म है।
वो दूसरी तरह का हुआ है, वो तो दूसरे प्रकार का है। वो तो हम भी ब्रह्म को जाएंगे तो हम हो जाएंगे, मैं नहीं रहेगा, मैं ब्रह्म हो जाऊं। वो दूसरे प्रकार से कहा है, ये अवतार की दृष्टि से कहा गया। नहीं, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म को जिसने जान लिया है वो खुद ही ब्रह्म है, इस तरह से बोला। और फिर फिलोसॉफिकली ब्रह्म हो जाता है, वो अपने को समझ सकता है। अच्छा, हाँ लेकिन भामरे इनका दिलीप भाई का जो प्रश्न है वो दूसरे प्रकार जी। महाराज जी ये वो महाराज महाराज जी अंदर में है। डाउट है महाराज जी, पूछो महाराज जी। बोलो महाराज जी बोलो। बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है महाराज जी। ऐसा है कि ठाकुर जी का अंतिम समय का समय में उन्होंने स्वामी जी को बताया था कि जो राम जो कृष्ण ही इसी शरीर में रामकृष्ण, पर तुम्हारा वेदांत मत से नहीं हो। इसका मतलब तो इस सिलसिले में क्योंकि वेदांत तो सबको आत्मा मानता है, सबको ब्रह्म मानता है, वो अलग से अवतार को नहीं मानता। तो इसमें तो इतना क्लियर हो गया कि श्री रामकृष्ण अवतार थे, पर अभी हाँ, अपने तो वो आप मानिए ना, आप मानिए ना। अभी अपने ये बताया तो वो तो श्री रामकृष्ण और ठाकुर स्वामी विवेकानंद की बात हो रही थी। स्वामी विवेकानंद ब्रह्म ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो ठाकुर ने कहा कि जो राम जो कृष्ण वो मैं राम कृष्ण, लेकिन तेरे वेदांत के अनुसार नहीं, वेदांत के अनुसार में तो सब ब्रह्म है। ओ अच्छा। हाँ, देवाशीष भी ब्रह्म है, अशोक भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। हाँ, तो फिर तो मेरा तो उतना शक्ति हो है नहीं, मतलब कि हम साधना करते नहीं, हाँ हाँ, तो आप कुछ वो आप जब साधना करेंगे तब हो जाए। हाँ, फिलोसॉफिकली बात कर रहे हैं, फिलोसॉफिकली सब ब्रह्म है। हाँ, तो कुछ ना तो कुछ तो महाराज जी भगवान आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ठाकुर और स्वामी जी की बात हो रही है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि सब ब्रह्म है जी, ठाकुर बोलते हैं हाँ तू ब्रह्म है, वेदांत की दृष्टि से तू ब्रह्म है। लेकिन मैं जो हूं ना तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं हूं, वेदांत की दृष्टि से सब ब्रह्म है, मैं एक्चुअली अवतार हूं। अच्छा, यस, राइट। जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी महाराज जी, now question number 3 on the same page 190. The qualified monist hold that it is Brahman that has transformed itself into jivas and the universe. Maharaj ji, what is qualified monist? विशिष्ट अद्वैत समझते हो तो अद्वैत नाम तो समझ लिया ना तुमने। हाँ हाँ, वो सुन लिया, समझ लिया। और ये विशिष्ट अद्वैत का सुनो, अद्वैत का अर्थ है कि जगत नहीं है, सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। हाँ, और क्वालिफाइड मोनिस्ट है विशिष्ट अद्वैत। ओके, अद्वैत के बाद जोड़ दो पहले विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत कहता है क्या है कि ये सब जो कुछ दिख रहा है ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म, यस, राइट। पढ़ो उसको। The qualified monist holds that it is Brahman that has transformed itself into jivas and the universe. हाँ, तो ये जरा जगत है ये भी ब्रह्म के द्वारा बना हुआ है, और ये जीव है वो भी ब्रह्म से बना। ओके, जैसे सुनो दिलीप भाई, जैसे मिट्टी है, हाँ, मिट्टी से आपने खिलौना बनाया, गाय बनाई, बकरी बनाई, ये सब बना दिया, हाँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बच्चा बोलता है ये गाय है, हाँ, बच्चा बोलता है ये घोड़ा है, जी, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब मिट्टी है। यस। तो जो क्वालिफाइड मोनिस्ट ये कहते हैं कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन ये सब भी हैं, ये भी सत्य है। हाँ, और अद्वैत वेदांति बोलता है कि मिट्टी ही सत्य है। यस यस महाराज जी, तो अपन एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि क्वालिफाइड ये मोनिस्ट है या बच्चे हैं जो। नहीं दिलीप भाई, वो आप सबसे बड़े हैं, बाकी सब बच्चे हैं। अच्छा, ऐसा मत बोलिए। ये क्वालिफाइड मोनिस्ट जो है ना अद्वैत वेदांतियों को परास्त कर देंगे। ये फिलोसॉफिकल वेदांत के उसके बारे में ऐसा कभी मत बोलना। ओके, जी जी महाराज जी, कभी नहीं बोलना। जय जी महाराज जी, बिल्कुल नहीं।
और द्वैतवादी भी आएंगे, वल्लभाचार्य वगैरह द्वैतवादी आएंगे, जी वो भी अद्वैतवादियों को परास्त कर देंगे। वो तो मानते हैं कि जगत सत्य है, हाँ जी लड़की भी सत्य है और मोबाइल फोन भी सत्य है, ये सब मानेंगे और वो तुमको परास्त कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा हाँ, ये मत करिए कि ये नहीं बच्चे नहीं हैं, कभी नहीं, गलती से ये कभी नहीं बोलना इस प्रकार। नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल सही है ज्ञान। हाँ, नाउ पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 4. When discrimination and dispassion arise in the course of meditation and spiritual practices, he comes to know it. But whatever way he may progress on the path of spirituality, everyone is unconsciously awakening Brahman within him. Maharaj ji. Now this my देख- question. हाँ जी. अच्छा, आपका प्रश्न नहीं है, वो आप सिर्फ स्टेटमेंट है वो। नहीं, आगे लिखा व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अच्छा स्पिरिचुअलिटी. अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे दो बातें कही है, हाँ विवेक और वैराग्य। शुरू जी शुरू जी. में देखो क्या लिखा है, रिनंसिएशन एंड हाँ, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन. यस. डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक, हाँ विवेक यानी क्या, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं जी. आत्मा हूँ, ये विचार करना। हाँ अरे ये मैं खाना पीना खा रहा हूँ, ये नष्ट हो जाएगा, ये जी जो धन है, धन संपत्ति है, ये नष्ट करने वाली है, इसका विचार करना। जी. और इसके बाद में वैराग्य होगा। यस यस. तो ये दोनों हुए बिना आगे नहीं चल सकते संन्यास, किसी भी जीवन, किसी भी मार्ग में, जी. भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो, दोनों नहीं हाँ जा सकते आगे। यस. तो ये दोनों फंडामेंटल यहाँ पर बताए गए हैं। जी. अब आपका प्रश्न है कि कितने मार्ग हैं, हाँ. तो जो हाउ तो मेनी. मत तो तब श्री रामकृष्ण कहते हैं जो तो मत तो पर, जी जितने जी. लोग हैं उतने मार्ग मार्ग हैं। यस. दिलीप भाई का एक मार्ग है, हाँ. आपकी बहन रेणुका का दूसरा मार्ग होगा, फर्क पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, जी. और चार मित्र होंगे, वो तो मैं भाई इस प्रकार से जाऊंगा, मैं विष्णु की पूजा करूंगा, और हाँ दूसरा कहेगा मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, चौथा हाँ. कहेगा कि मैं राम की पूजा करूंगा। तो मार्ग हो गए ना। जी जी जी, बराबर जी महाराज. आपका प्रश्न हो गया क्लियर। हाँ, क्लियर हो गया महाराज जी, बिल्कुल क्लियर हो गया. यस यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 192. And none can escape the round of birth and death until he realizes his identity with Brahman. Now, Maharaj, even atheist will also attain his identity with Brahman. क्यों? एथिस्ट, एथिस्ट जो है वो तो अज्ञान, वो तो भगवान को मानता ही नहीं, ब्रह्म को मानता ही नहीं है, तो आइडेंटिटी हाँ. मिलने का प्रश्न क्या उठता है? नहीं, ये मेरा क्वेश्चन ये आता है, जो लाइन है, एंड नन कैन एस्केप द राउंड ऑफ बर्थ एंड डेथ unless he realizes the identity with Brahman. So atheist will have to someday or other he will. हाँ हाँ, एथिस्ट को भी कई जन्मों के बाद में, जन्म जन्म के बाद में कभी भक्ति भाव होगा, कभी होगा, उसके बाद में जन्म जन्मांतर में, हजारों जन्म के बाद में फिर उसको ब्रह्म को जानना पड़ेगा, उसके बाद तो। Okay, acha. Right. Now the same page 192, question number 6. Maharaj ji, as Swamiji said, external sannyas, Brahman, is difficult to attain, is not realized. In this case, where we stand, external sannyas से काम नहीं चलेगा. नहीं नहीं, हाँ एक्सटर्नल वो Yes. नहीं बोला है, बिना ऐसे, बिना एक्सटर्नल संन्यास के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, ये बोला है, तुम समझे ही नहीं उस चीज को। No, one must have both internal and external sannyas. हाँ, Renunciation यानी is as well as बाहर भी, form. अंदर हाँ अंदर से दिलीप भाई आप अंदर से तो त्यागी हो गए, हाँ आपको आसक्ति नहीं है, जी. लेकिन बाहर तो आप ऑफिस में जा रहे हो, पैसा जेब में रख रहे हो, बैंक में हाँ जा रहे हो, ये सब कर रहे हो, जी जी जी, बिल्कुल जी. लेकिन अनासक्त हो, हाँ अंदर का संन्यास है, हाँ. ऐसे काम नहीं चलेगा, बाहर का संन्यास भी लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा.
यानी हमें भगवे कपड़े पहन के या सन्यास बन के रहना पड़ेगा। हाँ, बनना पड़ेगा, ओके, बाहर भी नहीं छोड़। अरे हमारा ये कहना है कि अंदर इतना त्याग है तो फिर बाहर छोड़ते क्यों नहीं? यस जी। महाराज जी बड़ी बड़ी बातें करने, बाहर का बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होता महाराज जी बाहर का सन्यास तो दिखाने वाला सन्यास हो गया, अंदर में है? हाँ, अब अच्छा, ये मतलब ये है कि ब्रह्मेशानंद ने भी दिखाने का संन्यास लिया है ना? हम लोग के लिए बता रहा हूँ, आपको तो नहीं, सन्यास आप क्यों, आप लोगों के लिए भी जब आपके मन में आएगी अगर बात में तो पता चलेगा, आप तब पता चलेगा, आप घबरा जाएंगे बाहर के सन्यास की बात सोच के। बाहर के सन्यास के बाद आपने घर में ऐसे थोड़ी रह सकेंगे। महाराज जी ये नेक्स्ट पेज पे स्वामी जी ने लिखा है, द एंड एंड द मीन्स ऑल in your hand. I can only stimulate them. You have read so many scriptures and are serving and associating with such sadhus who have known Brahman. If even in this does not bring the idea of renunciation, then your life is in vain. Perfectly right. But it will not be altogether in vain. The effects of this will manifest in some way or the other in time. अब प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है हाँ कि आपने अभी संन्यास नहीं लिया, उसको कि गृहस्थ शिष्य को बोल रहे हैं हाँ हाँ कि बिल्कुल। तुम कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम जूम मीटिंग तो अटेंड करते हो, बीच बीच में बातचीत करते हो, तो ये बुरा नहीं होगा, फायदा ही होगा उसका। उसका कभी 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 न कभी उसका लाभ होगा। बस 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 जी महाराज जी। नाउ पेज नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 7। महाराज जी, हाउ टू किल द माइंड? इवन आफ्टर डेथ the mind still remains in any other form. Maharaj ji, though the reply is given in the next few sentences, but still please explain. Maharaj ji, नहीं, एक्सप्लेन, रीड करो, उसमें पढ़ने से ही, पढ़ने के बिना नहीं होगा। हाँ मैं रीड कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड। Yes. The direction of the mind, which always runs after the senses, has to be turned within. The mind has to be killed. The body is but gross. It dies and dissolves into the 5 elements. But the bundle of mental impressions, which is the mind, does not die soon. It remains for some time the seed form and then sprouts and grows in the form of a tree. It takes on another physical body and goes the round of birth and death until self-knowledge arises. Therefore, I say, by meditation and concentration and by the power of philosophical discrimination, plunge this mind in the ocean of existence. Knowledge, bliss, absolute. When the mind dies, all limiting existence vanish and you are established in Brahman. This is the complete. Yes. बोला, क्या बोला है यहाँ पे, कैसे मन मन मरेगा उसको बता दिया बिल्कुल। जी। यानी मन तो मरने वाला नहीं है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह जब तक रहेंगे तब तक मन नहीं मरेगा। जी। इसलिए क्या करो, ध्यान जब स्वाध्याय के पारा द्वारा उसको ब्रह्म में विलीन कर दो। यही तो बात कही सीधी तरह से। जी। यही कहा है ना, सीधी तरह से बात कहा, यही बात कही ना, इसी को किल मन को मारने का ये पूरी प्रोसेस बता दी है वहां पे स्वामी जी ने, बिल्कुल क्लियरली। राग द्वेष काम क्रोध को मन से दूर करो और उसको भगवान में विलीन कर दो, तो मन मन जो है वो विलीन हो जाएगा मन में। जी महाराज जी, ब्लिस एंड यही है एब्सोल्यूट तो। राइट। जी समझ में आ गया। 6 ठीक एंड है। 7 दोनों क्वेश्चन हो गए क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 195। Science and philosophy etc. are only partial truths. Please explain how they can be partial truths. Further, even partial truths, how it can be unreal. अच्छा अच्छा, आप ट्रुथ का पहले ये बताइए, ट्रुथ का क्या समझते हैं आप, पहले ये बताइए। ट्रूथ का मीनिंग ये है कि सत्य है, द एग्जिस्टेंस इज करेक्ट। सत्य का क्या मतलब होता है? यहाँ पे सत्य की बात, ये मेरे सामने जो टेबल है वो सत्य है। हाँ। मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, सत्य है। जी। तो ये सत्य जो है, ये सब जितने सत्य हैं ये पार्शल ट्रुथ है। हाँ। यानी आधे सत्य है। जी। क्यों?
वास्तविक सत्य ऐसा है कि जो वर्तमान, भूत और भविष्य काल तीनों में जो चीज बनी रहे वो पूरी सत्य है। जी समझे? ये मोबाइल फोन जब बना था हाँ उसके पहले नहीं था। नहीं ये अभी 20-25 साल, 30-40 साल से मेरे हाथ में है, तब तक ये सत्य है। जी और उसके बाद 20-50 साल, 100 साल के बाद में खत्म हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। yes, तो जो चीज थोड़ी समय के लिए सत्य है उसको पार्शियल ट्रुथ कहते हैं। बराबर। जो सदा बनी रहे वो है वास्तविक सत्य। तो वास्तविक सत्य के अंदर तो सिर्फ ब्राह्मण के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। यस यस, हाँ पढ़ो पढ़ो, उसको समझ में आ जाए। जी शुड आई रीड इट? तुम हो गया, तुम्हारी बात, प्रश्न हो गया? हाँ हो गया, मेरा हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 197। महाराज जी प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एंड हाउ टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेडिटेट। हाँ? देखिए ये मैं पढ़ रहा हूँ महाराज जी 197। हाँ, by means of discrimination and meditation the goal of Brahman has to be reached. One is sure to reach the goal by practicing in this way. This, Okay. in my opinion, is the easy path ensuring quick success. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन, चीज? दो बातें बताई हैं दिलीप भाई। हाँ जी बिल्कुल, दो बात बताइए। क्या है बताओ? डिस्क्रिमिनेशन एंड मेडिटेशन, यानी विवेक से चलना। अच्छा विवेक सुनो से सुनो, चलना। डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक। विवेक, हाँ विवेक से चलना। तो अभी बात की, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात की विवेक के बारे हाँ तो में, है ना? जी ये जो है ये टेबल खत्म हाँ हो ये जाएगी। जी ये जी मोबाइल फोन कुछ साल बने खत्म हो जाएगा, हाँ ये नहीं बचेगा, हमारा शरीर भी नहीं बचेगा। ये विवेक हुआ। हाँ ये विवेक हुआ। यस विवेक केवल ब्रह्म है, एक परमात्मा है, भगवान है, एकमात्र सत्य है, जी वो परिवर्तित नहीं होते हैं, ये विवेक हुआ। हाँ अब उसके बाद में मेडिटेशन या ध्यान। जी जिस बात को आपने विवेक द्वारा निश्चित किया है उसमें मन को लगाओ। ओके जी यानी बराबर। हमने यह निश्चित किया है कि केवल आत्मा ही सत्य है। हम्म आत्मा का स्वरूप क्या है, हो गया। अब उसके ऊपर मन को लगाना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन समझते हो तो कि नहीं समझते हो? हाँ समझते, बिल्कुल ध्यान करना है। तब ये जी दोनों बात चीजें समझ में आ गई, विवेक और डिस्क्रिमिनेशन एंड मेडिटेशन। यस यस महाराज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 197, लास्ट। महाराज जी एक चीज पूछना था मुझे। हाँ जी। ये जो कन्वर्सेशंस हो रहे हैं ये तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स शरद चंद्र चक्रवर्ती। हाँ he बिल्कुल। he is a person who is very analytical और जो काफी शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं। तो he is probably encouraging this disciple on the path of Gyan Marg. That's why he's repeatedly saying कि ज्ञान मार्ग का path is going to be the shortest cut for you. ऐसा है क्या? That you cannot decide because we have taken this text for our discussion. That's all. We cannot say anything more than that. स्वामी विवेकानंद, हमने भक्ति योग तो लिया नहीं है, हम दूसरा कोई टेक्स्ट ले नहीं रहे हैं। ये टेक्स्ट है तो उसमें जिस प्रकार की बात हो रही है उस पर हमें इसी प्रकार का विचार करना पड़ेगा। Swamiji, I have a related question on meditation. Can I ask it Wait. now? No, because this is a meditation point has arisen just by the way. जी yes महाराज जी, now question number 10, page number 197, last line. The Atman cannot be known by the mind, for it is itself the knower. The Atman cannot be known by the mind. It's again saying the highest ideal of Ishwar which the human mind can grasp the avatars. Maharaj ji, is there any contradiction between the two sentences? No, these are two different sentences. They are not related. अच्छा हाँ, तो वो मैंने जानना चाहता। पहला सेंटेंस बोलो, क्वेश्चन कुछ पहला सेंटेंस बोलो। हाँ पहला सेंटेंस बोलता हूँ। The last line of 197, the Atman cannot be known by the mind. हाँ ठीक है। For it is itself the knower. Yes. हाँ ठीक है। तो हाँ आत्मा जो है, जो हमारे मन से बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको देखता है आत्मा, उसके पीछे जो है वो
दृष्टा के रूप में बना रहे, ठीक है। नहीं महाराज जी, नहीं, एक बार फिर से बता दें। नॉन बाय द माइंड, जैसे जैसे एक हमारा आत्मा जो है वो हमारा मन है ना, हम बातचीत कर हाँ रहे हैं, हाँ हम हाँ उसको हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं, हम कहते हाँ हैं कि हमारा मन बड़ा चिंतित था, जी मतलब ये हमने मन को देखा। हाँ तो उसके पीछे और भी कोई होना चाहिए जिसने मन को देखा। हाँ हाँ हाँ, आत्मा। हाँ, तो ये आत्मा हो गई। जी तो ये आत्मा समझ में आ गई आपको। हाँ यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ ईश्वर विच द ह्यूमन माइंड कैन ग्रास्प द अवतार। हाँ, मानव मन जी जो ईश्वर की कल्पना करता है, उसमें स्वामी जी कहते हैं कि उच्चतम हाँ कल्पना है अवतार। हाँ, क्या अवतार द की कल्पना जो है मानव हाँ की ईश्वर की उच्चतम कल्पना है। अच्छा हाँ, ये बस जी। ठीक। यानी ईश्वर को समझने के लिए अवतार की हम कल्पना कर हाँ हाँ सकते। हाँ हाँ, बिना अवतार से नहीं समझ सकते। राइट राइट राइट, करेक्ट। हम्म। Now question number 198, page number 198, question number 11. How common people can know avatars who have come on earth? As it written, why or by what process it comes cannot be ascertained. This is Swami said. वो अवतार को समझना अत्यंत कठिन है। वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, किस हाँ, कारण से आते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है, ये बात है। ये बराबर, परंतु कॉमन मैन को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये अवतार आए हैं? वो रामकृष्ण बड़ा देव आए, हम तो वो, लेटेस्ट समझते हैं, पर हाँ नहीं, क्या कि वो 100 करोड़ की पॉपुलेशन में से किन्होंने ये समझा और कैसे समझा कि ये अवतार है, ईश्वर है? हाँ, वो नहीं समझते। ठीक, वही तो, यही तो बात कह रहे हैं ये, हाँ कि उसको अवतार को समझना बहुत कठिन है, यही बात कह रहे हैं। तो इसको कोई समझने के लिए कोई स्वामी जी ने ये नहीं बताया कि ये ज्ञान हो तो हम समझ सकते हैं कि अवतार है? स्वामी जी ने देखा कि ये समझने वाले हैं तो उनको बता दिया, ओके लेकिन लोगों को थोड़ी पता। महाराज जी, जस्ट ट्रैक से हटके मैं पूछ रहा हूँ सवाल कि वैसा कहा गया था, आखिरी 50 साल से ये बात Hello. चल रही है, आखिरी 50 साल से ये बात चल रही है Good. कि कृष्ण ने फिर से अवतार लिया है, वो कलगी अवतार है और वो साउथ में है। तो ये क्या कोई किसी ने समझा होगा क्या? क्योंकि वी नेवर, तुम पता लगाओ ना भाई, मेरे को थोड़ी नहीं नहीं, मेरा ये पूछता नहीं, ये इस प्रकार से है, रामकृष्ण देव आए तो उनको जानने के लिए कोई ज्ञान ज्ञानी 15 लोगों को साथ में लेके आए, तो इसलिए ये बात हुई, वरना कैसे मालूम पड़ता? मैं अब उनके ये बाबा, उनके लिए ये सब मालूम नहीं बाबा आपने। महाराज जी, भैरवी ब्राह्मणी का साथ दशोधर पंडित आया था, दक्षिणेश्वर सबका सामने में वो तो प्रमाणित हुआ था कि ये अवतार है, बहुत बड़ा स्वभाव हुआ था। तो देखो दिलीप भाई, ये आवाज आंसर हो गया तुम्हारा। ओके महाराज जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Maharaj ji, Swami ji was so much versatile personality. He has excellent knowledge in all the fields. कि आर्ट्स के बारे में बताते थे. Was this knowledge was given or transferred to other sannyasi brothers? Can we? नहीं, ये मैंने ठाकुर, तुम्हारा प्रश्न ये है कि ठाकुर ने स्वामी जी को हाँ ट्रांसफर किया यस, था। ट्रांसफर, वैसा ये ट्रांसफर इस प्रकार का स्वामी जी ने किसी को ट्रांसफर किया है, इसका हमको पता नहीं। हाँ, ऐसा ये कहीं मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जी महाराज जी. And my last question, that is in Hindi, just I will read it. Maharaj ji, you have said Bhakti Marg is not easy to attain Brahman. But here Swami ji says it's easy, but one gets fruits late. So how Swami ji says, please explain. स्वामी जी ने, मैं हिंदी में ये पढ़ रहा हूँ, उन सब पंथों में साधना करते करते भी किसी भी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग के द्वारा धीरे धीरे उन्नति होकर देर में फल प्राप्त होता है, परंतु मार्ग है सरल। अब ये महाराज जी, मेरा सवाल ऑफ द ट्रैक भी गया है और इसमें गया है कि आपने ये कहा था जब भक्ति मार्ग की जब बात होती थी तब, कि भक्ति मार्ग इजी नहीं है, आपको गोपी सरी का त्याग करना पड़ेगा, इट्स नॉट सो इजी। ये स्वामी जी से जिससे इजी, मेरा सिर्फ पूछना था, नो कॉन्ट्राडिक्शन, नथिंग।
अच्छा देखो देखो देखो, ऐसा है कि प्रत्येक में हृदय है। हाँ एक छोटा बच्चा भी जो है हृदय है, जी और उसको सामने एक छोटा सा कृष्ण की मूर्ति दे दो हाँ कि देखो बेटा ये भगवान है, जी तो वो मान जाएगा जी और रोज उसको फूल चढ़ाने लग जाएगा। हाँ बराबर। तो इस दृष्टि से भक्ति मार्ग सरल है। अच्छा उसमें ये विचार नहीं करता कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग नहीं हूँ, और मैं आत्मा और ब्रह्म एक है, ये विचार की चक्कर नहीं है। हाँ हाँ जबकि में प्रेम की भाव है, जी इसलिए भक्ति मार्ग सरल है। ओके जी लेकिन इतना भी सरल नहीं है। हाँ जो माँ भी प्रेम करती है, बच्चे को प्रेम करती है, जी तो उसमें वो कितना त्याग करती है तो सोचो, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी तो जी फिर उस प्रकार से इस दृष्टि से भी वो सरल नहीं है। अच्छा बराबर हो गया तुम्हारा प्रश्न? एक प्रश्न हो हो गया गया। जी जी अच्छा होगा, ठीक। मेरे सब प्रश्न हो गए। प्रणाम महाराज जी प्रणाम। अच्छा, कितने 13 प्रश्न महाराज पूछे आपने? हाँ महाराज जी वो ऐसा है कि या तो 12 करो या 14 करो। ये अंग्रेजी में 13 जो है वो नंबर ज्यादा हवा का लायक होता जरूर महाराज महाराज मेरे क्वेश्चन ले लीजिए अब। जी सतीश महाराज बोरा मेरे लीजिए। सतीश बोरा मेरे है। लीजिए क्वेश्चन। क्या बोले? सतीश बोरा मेरे क्वेश्चन ले लीजिए महाराज, मेरे क्वेश्चन ले लीजिए। ले लीजिए ना, मेरे को क्या है, आप आइए ना सतीश जी, आपके बाद आपका ही नंबर आ जाइए। राइट राइट महाराज, फिर मैंने जाना है। राइट पूछिए। जी पूछ रहा हूँ महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, only the path of jnana is of fruition and the rationale of all other creeds. By means of discrimination and meditation, the goal of Brahman has to be reached. One is sure to reach the goal by practicing in this way. Thus, this, in my opinion, is the easy path ensuring quick success. महाराज अभी जो क्वेश्चन पूछा वही है। हाँ, तो ये ऐसा है फॉर दोस पीपल। उन्होंने वो जो उनका डिसाइपल था शरद चंद्र, उसको कहा, क्योंकि वो विचारवान व्यक्ति था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये विचार का मार्ग है, ये तुम्हारे लिए इजी है। राइट राइट महाराज, ठीक ठीक। Next question, Maharaj. While describing the doctrine of incarnation of God, Swami says, from their very birth, they are knowers of Brahman. And between the Brahman and the knower of Brahman, there is not the least difference. Maharaj, मेरे उसके बेसिस पर मेरे जो 3 questions हैं. First, why do we not need to worship avatars to attain Brahman, and why not my own Atma, which is Brahman itself? Earlier, Swamiji had why do we need to worship avatars to attain Brahman, and why not my own Atma, which is Brahman itself? नहीं, ऐसा जरूरी है क्या अवतार को करना नहीं है? वेदांत का तो नहीं मानते इसको। अब विवेक चूड़ामणि वगैरह पढ़िए, वहां पे तो अवतार की बात नहीं करते, वहां तो आत्मा की बात करते हैं। आत्मा का विचार करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, और ब्रह्म भी आत्मा है, शुद्ध मुक्त स्वभाव है, मैं एक हो गया हूँ। वहाँ गुरु की आवश्यकता मानते हैं, लेकिन अवतार की बात नहीं मानते। किसने बोला आपको? लेकिन अवतार की आवश्यकता तो पड़ती है महाराज। नहीं, आप तो पढ़ते होंगे, ज्ञान मार्ग में तो नहीं है, विवेक चूड़ामणि में कहीं अवतार की बात नहीं है। तो हम तो दोनों मार्क्स को मिला के चलते हैं ना महाराज। आप मिलाइए, या आपका प्रश्न जो है, प्रश्न क्या रहा? जी जी, मैं कहना अवतार की जरूरत तो पड़ती है, ब्रह्म काम। ये आप जानिए, आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। मेरा प्रश्न का जवाब दे दिया, ज्ञान मार्ग में अवतार की जरूरत नहीं है। राइट राइट, वहां पर नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग पे है। भक्ति मार्ग पे सीधी बात है, मिलाइए मत उस चीज को। राइट राइट महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, in Gita, in Srimad Bhagavad Gita, Sri Krishna, while identifying himself with Brahman itself, asked Arjuna to take refuge in me alone, which Swami said means be established in Atma. Maharaj, why not take refuge in Atma itself? In other words, why does we need, वही सेम बात होगी, why do we need the medium of Shri Krishna? नहीं, वो तो ठीक है, छोड़ दीजिए ना। द्वितीय अध्याय में तो भगवान गीता के आत्मा की बात करते हैं। जी जी, वो बाद में जाके टेक रिफ्यूज की बात करते हैं।
राइट राइट राइट। तो ज्ञान मार्ग में जरूरी नहीं है ये? नहीं, जरूर नहीं है। जी जी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस मैटर। इन अदर रिलीजन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड इज नॉट एक्सेप्टेड, बट देयर फाउंडर्स आर कॉल्ड प्रॉफिट्स, गुरुज और सन ऑफ गॉड। महाराज व्हाट इज द डिफरेंस? हम तो अवतार मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं अवतार जो है गॉड ही है, एक किस्म का गॉड का ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उनके जो होते हैं प्रॉफिट होते हैं, गुरु होते हैं, पर डिफरेंस तो कोई खास नहीं नजर आता। आपका क्या सर? अब वो आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो तुम? तुमको जी क्या महाराज। लेना देना? वो लोग अवतार मानते हैं, आप भगवान के अवतार मानते हैं या तुमको क्या लेना देना? जी जी महाराज, ठीक, इस इसको चक्कर शो में कोई लेना देना नहीं है उसका। राइट राइट। Last question, Maharaj. It is a truth that by your own past action you have got this body. Then nullifying the effects of evil works by good works, why should not be a Jivan Mukta in this very body? Maharaj, can one become Jivan Mukta by good works only? Yeah. Yes. विवेक चूड़ामणि पढ़िए, ये सब जगह जो सब जगह गुड वर्क की बात है। सब जगह शुभ करते जाओ, चित्त शुद्धि होते जाएगी, तुम्हारे वासनाएं सब दूर होते जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे, सीधी बात है। उसमें ज्ञान की भी आवश्यकता है हमारे, मेडिटेशन और ज्ञान की भी। वो अपने आप हो जाएगा, याद रखो, चित्त शुद्धि तो पहले करो। राइट राइट। ठीक है महाराज, दीज आर माय क्वेश्चंस। अब उसके बाद कौन बचा? आइए 5 नंबर कौन है? शिवानी। हाँ जी महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 189 और 190। स्वामी जी's Brahman Bhava is the same whether Swami ji is in good health or not. It is same. ये तो वहां पे तो कोई है नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है। वो पढ़ के ऐसे ही माइंड में आया। उससे क्या है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन जो भी हो, स्वामी जी तो हमेशा ही इस भाव में। सच पूछा जाए तो प्रत्येक ब्रह्मज्ञानी, प्रत्येक वेदांती जो है वो हमेशा इस भाव में रहता है। ये तो बड़ी सामान्य बात है। मतलब बीमारी का उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता हमेशा। स्वामी जी की बात तो छोड़ दीजिए, ऑर्डिनरी वेदांती जो है वो भी बीमारी की चिंता नहीं। ठीक है महाराज। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। हाँ जी। तो मृत्यु न शंका न में जाति भेद, पिता ने व मैं ने व माता ने जन्म, वो कहा है तो उसमें तो वो मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, निरंतर होता रहता है, इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है महाराज। सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 191। These are the lines. But in whatever way he may progress on the path of spirituality, everyone is unconsciously awakening Brahman within him. So how it is possible, Maharaj? वो आपको ब्रह्मन नाम दिया इसलिए आपको चिंता हो रही, लेकिन सच पूछा जाए अंदर अंतर्निहित देहवत्व है, ब्रह्मत्व है, आत्मत्व है, जो भी होगा, जो भी आप साधना करेंगे तो अंतर्निहित स्पिरिचुअलिटी है, इनरमोस्ट जो कॉन्शियसनेस है या इनरमोस्ट परफेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली होगा। भगवान ये बंद करो, आवाज हो रहा है। अरे सब लोग मोबाइल खोल के बैठे हुए। संजय जी, रीता विश्वाल जी बंद कीजिए। जी महाराज। हाँ बस बंद कराओ भाई। चलो नेक्स्ट हो गया। हेलो, यस स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। सुनो रीता you switch off your audio video. हे भगवान, so much of sound is coming from mobile phone. अच्छा, तो शिवानी सेकंड क्वेश्चन हुआ? जी महाराज। अच्छा हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 192। That is true 1,000 times. One must have both internal and external sannyasa.
My question is, but in many examples like Kabir, Nanak, etc., all were married. So please throw some light on this. Yeah, that is all right. यानी बोलो यानी in the Upanishads वाप्यलिंगात ऐसा है, यानी विवेक चूड़ामणि में उपनिषद में क्लियरली लिखा है, उपनिषद में मुंडक उपनिषद में यह है कि संन्यास के बिना, और वो भी संन्यास का बाहरी लिंग सहित संन्यास के बिना ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। Yes. अच्छा, प्रश्न ये है, देखो क्या बात है, अगर ये न कहा जाए ना तो कोई भी बाहरी संन्यास लेगा, अंतर संन्यास करेगा, मैं बाहर अंदर से त्याग करता हूँ, अंदर से त्याग करता हूँ, और अपने आप को वे लोग छलेंगे, ये नहीं समझते जी। ऑल विल से मैंने अंदर संन्यास लिया है, दे विल डिसीव देमसेल्फ। यानी श्री यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण ने भी बहिर्संन्यास लिया था। ओके। केवल बाहर चले ना, उन्होंने तोतापुरी से संन्यास लिया था। Yes. फिर तो ये बाहर रिचुअलिस्टिक संन्यास जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता अच्छा, मतलब वो होना ही चाहिए। है। रिचुअल, हाँ, रिचुअलिस्टिक संन्यास होना चाहिए। ठीक है। यानी उसके बाद में जो आपको प्रेष मंत्र होके एक बार संन्यास करके आप रहिए 24 घंटे 48 घंटे, कम से कम एक गेरुआ कपड़ा पहनिए, उसके बाद में चाहो तो आप गुरु के आदेश से आप दूसरे इसमें रह सकते हो, लेकिन एक रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये संस्कार होता है, याद रखिए, इसको संस्कार बोलते हैं। ठीक है महाराज। समझे ना, ये जो हमारे यहाँ संस्कार की बात है ना, इसको समझते हो तो? जी। यानी ये दो व्यक्ति एक साथ, एक पुरुष और स्त्री एक साथ गृहस्थ एक साथ रहते हैं, पति पत्नी जैसे, लेकिन विवाह नहीं किया ऑफिशियली, तो उसको अलाउ नहीं करते। विवाह कर लो, उसके बाद में जैसा चाहो, ऑफिशियली विवाह करो, फिर अपने अपने अग्नि के सामने जाके विवाह कर लो, उसके बाद में जैसा करो। ठीक है? ठीक है महाराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बाहरी संन्यास का एक संस्कार होना आवश्यक है। अच्छा महाराज, लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 205। स्वामी जी ऑल्सो, ये वैसे उन्होंने पूछ लिया, अभी दिलीप सर ने पूछ लिया था कि उन्होंने, स्वामी जी ने अपनी पावर्स ट्रांसफर की थी किसी डिसाइपल में या नहीं, लाइक रामकृष्ण। तो वो आपने कहा है कि कोई प्रूफ नहीं है, तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो एक मिनट, वैसे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अपने शिष्यों में, जैसे विरजानंद जी थे और भी जो इंटीमेट थे, उन पर उन्होंने विशेष कृपा की थी, कुछ शक्ति का संचार किया। अच्छा। जो स्वामी जी को गुरु श्री रामकृष्ण से जो अवतार शक्ति प्राप्त हुई थी, उसका संचार उन्होंने विरजानंद जी और दूसरे उनके कुछ शिष्य थे, इंटीमेट शिष्य थे, उनके किया था। महाराज, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो अपनी बुक्स हैं उसमें भी वो चीजें ट्रांसफर की हैं, जैसे बुक्स में, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में की हुई है ना। अब यूं तो ऐसा है ना कि भाई हम लोगों ने जब से स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, तो वो तो पढ़ते ही हम लोग अभिभूत हो गए। तो स्वामी जी के एक लाइन, एक पैराग्राफ किया पढ़े ही तो हम प्रभावित हो गए थे, हमारा जीवन ही बदल गया। हाँ, तो वही अब ना इसको कैसे, क्या मालूम, वो तो स्वामी जी की शक्ति है ही, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। जी। ठीक है महाराज, प्रणाम अच्छा, महाराज। सुनो हाँ जी। वो संन्यास, बाहरी संन्यास की बात जो हो रही है ना, इसके ऊपर शंका उठाई गई है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ठीक संन्यास हो गया है, तो फिर बाहरी संन्यास क्यों नहीं ले? ठीक है महाराज। चलो आगे चलो। बस हो गया? महाराज।
यही थे अच्छा। क्वेश्चन। रीता बिस्वाल। थैंक यू, प्रणाम महाराज। अच्छा, नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। रीता बोलो। Section 15, page 193, end to 194 beginning. Swamiji explains how self-effulgent Purusha is hidden under the various delusive ways and says the mind has to be killed. He explains further how to kill the mind, which is always going outward. I do not understand clearly how to kill the mind. अच्छा, Should this अच्छा। be done during japa and yes, Already this point has been discussed. yes, Swamiji. But again, I will tell you. The killing of the mind can be done by meditation. In meditation, when you fully concentrate your mind on one mind. Second, by giving up desires. Yes. Reduce all the problem. वासना नाश करना पड़ेगा. Yes, Swamiji. पेज नंबर 194 का फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा डिटेल दिया हुआ. Yes, yes, Swamiji. Realizing the Brahman, the Atma died. Yes, Swamiji. Thank you, Read it. Swamiji. Okay. Yes, I have written it down also. Okay. Section 15, page 195, first paragraph. Swamiji explains Atman. My few questions are: one, are Brahman and Atman the same? Yes. Philosophically, Advaita Vedanta, Brahman and Atman are same. Same. What is the relationship between Brahman, Atman, and Jiva? Same, I already told. Yes, you have already said. Atman and Brahman are same. Yes. And when you know, realize Jiva is also part of Brahman, Atman. No. Oh, Jiva does not exist then. Brahma Satya Jagat Mithya Jivo Brahmaiva Naparaha. Jiva and Brahman are same. Brahma Satya Jagat Mithya. This Jiva which you call separately, it is one with Brahman. Philosophically. Yes, philosophically. Brahma Satya Jagat Mithya Jivo Brahmaiva Naparaha. ये तो शंकराचार्य है said. Yes, Brahma Satyam Jagat Mithya. Jivo Brahma, Jiva and Brahma are not separate. It's one line it is so. The third one is, why does the Jiva not get even a slight inkling that he is nothing but the Atman? Here by Jiva, I mean, bodies like me. I say Jiva does not know because of ignorance. By ignorance, he considers that I am Shivani, I am Rita, I am Brahmeshananda. Because of ignorance, he considers separate. Because of ignorance. Yes. Because of ignorance. So that ignorance has to be removed. Yes. Then the next one is, what is the relationship between Brahman, Maya and Ishta? And how to Brahman, Maya and Ishta. You see, Maya is a covering way because of ignorance. We are not able to know the Brahman. Yes. And Ishta is we are imagining our Brahman and a god which we worship. That is called Ishta. Yes. Yes. Okay. So we can think of our Ishta as Brahman. Is it right to think of my Ishta as Brahman? Yes. The last question, I mean, it was a related question. I've got the answer now. How to contemplate on this? You contemplate on your Ishta. You contemplate on your Ishta. That's all. Okay, Swamiji. Thank you, Swamiji. I'm now clear about most of the answers. Hitu Ghosh. हितु घोष है कि नहीं? भुवन मित्तल. प्रणाम महाराज.
Yes, मेरे Ritu. Bhuvan, okay. हाँ जी महाराज, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है See, अ, I have given you an as a reply. You have read it. हाँ जी। Your questions are only if you have got some. You gave some statement. That's all. You don't ask questions. You make some statements. हाँ जी। Read I'll out. ask better next time. Swamiji says that in Mother Kali there is the union of blissful and terrible aspects. What is the reason for Mother to have a terrible aspect? Because the world destruction takes place. People die. There is suffering in the world. Is there not there? हाँ जी। So there must be someone doing it. It is God who is creating, preserving, and destroying. This is Vedanta philosophy, like destruction, preservation, and creation. They are produced by God. So Mother Kali represents also the destructive aspect. हाँ जी। And what the blissful aspect represents her creative and preserving aspect? Yes, preserving aspect, yes. Yes, Maharaj. So Next. the next question is, Swamiji seems to be advocating to consume fish and meat like the East Bengal people, as it makes for a stronger body. But can we be vegetarians, as it helps to keep the mind calm, and it's ingrained in us to be the right choice? Yes. Yes. You take protein diet? Yes. Okay. Next. Thank you, Maharaj. Okay. ईतू मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी म्यूट था। हाँ, अब अनम्यूट कर लीजिए। Itu, you talk questions. Itu Ghosh. Itu Ghosh. ईतू मैम आपका एक जगह पे कैमरा सिर्फ दिख रहा है और माइक नहीं दिख रहा। अगर जरूरत हो तो आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करिए। पता नहीं आपके 2 डिवाइस से लॉग इन किए हैं क्या? एक उसे जगह फोन से बात करो ना, फोन से। वो तो मोबाइल से, मोबाइल कैमरा से सुन नहीं रही है। Swamiji, can I ask my question in the meantime? Yes. You I have see, only Shivani, क्या नाम अपने Malini. why don't you see officially? Why don't you every time ask your question formally? You are No, just no, asking in the end or in between. That will not do. no, this has Every time emerged. you do like this. This has emerged from the discussion. No, never. I will not encourage this. Okay, then I won't ask. Today you ask, but actually in future you ask questions as others are. Sure. Swamiji, this if suppose one doesn't have a preference for meditating on a form, you have told us to do Nirvana Shatakam. That's great. We do it. But besides that, can we, take up some words like there are some other like Ananta and different forms which describe Brahman. If I meditate on that, and so that I extend the period of my meditation, is that equivalent to meditation? There are a large number of stotras of meditation on Brahman. That's right. That's right. Chidananda Rupa, Shivoham, etc. So many are there. So many meditation slokas are there. You can take up these and meditate on them. There is no difficulty. That's what I wanted to ask. That's what I wanted.
Thank you so much, Swami. Thank you. I will sign off because my electricity is gone. It's Now, Itu Ghosh. इतू जी, आपने ज्वाइन तो किया, दोबारा से देखिए आपका माइक काम करता है? नहीं करता है। उनका कुछ प्रॉब्लम है, महाराज, नहीं हो पाएगा लगता है। तो खत्म करें फिर, हो गया सब? अभी उनसे बात हो रही थी, वो कह रही है मेरी नेटवर्क बार बार चली जाती है, तो फिर अभी मेरे से बात हुई। तो फिर अब संजय जी महाराज, shall we close now? शांति मंत्र करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। ओके। आगे ओम आगे शांति। आगे आ गई है। तुझे आ गए। जी, my first question, from the text, the test of progress is the amount of renunciation that one has attained. So my question is, for the people like us, means the family men, what specific type of renunciation we need? By renunciation is meant non-attachment, anasakti. You understand anasakti? Non-attachment. And then for that, you have to do one thing. Occasionally go into solitude. Swamiji Thakur repeatedly says, if possible, go for 1 day. If possible, go for 7 days. If you go for 15 days. Swamiji Thakur repeatedly tells, remember, if you go to the ashram, remain, forget the world. Anyway, you go to the ashram and then 10 times you mobile phone you do, that will not do. Renunciation is very difficult. Mental renunciation I am talking. External relationships, you are the grahastha, you cannot do it. But even mental renunciation is very difficult. So nowadays the mobile phone has come, so I don't know whether sannyasins also after renunciation, Virja home, after that their mobile phone is there. So that will not do. Actually, for high shoulder anasakti, go into solitude where there will be no mobile phone, remain for 7 days and you find whether you are able to live or not. That will be the test of your anasakti. Is that okay? Yes. Okay? क्या हुआ भाई? Yes, yes. इतु घोष, ये भगवान। नेटवर्क का इशू फिर आ गया लगता है। इतू जी का अनम्यूट करने से दिख रहा है, पता नहीं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो फिर शांति मंत्र हाँ, लग रहा है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, the second question, throw aside your karma and all such stuff. It is a truth that by your own past action, you have got this body. Then nullifying the effects of evil works by good works, why should you not be a Jivan in this very body? So my question is, how intense should this good, this should be, which will nullify the effects of previous karma? For intensity, it depends upon intensity. If you are day and night thinking only of good things, if you are doing good to others continuously, then quickly it will burn. But if you are doing little good, little casually doing good, to that extent evil will go. So it is a question of why, how it is, how much is not there. It is as much as you can do it, and however when you can do it, in whichever way you do it. Okay, means it should be very sincere and simple, intense. very clear. Okay. ठीक है? जी जी, ठीक है। प्रणाम महाराज। ओके, संजय हो गया? जी महाराज, शांति मंत्र करते हैं। ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार सबको, नमस्कार, नमस्ते।